students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and taking care of yourself. Students, in our last 3 videos, we have discussed about all the agricultural practices that are done by farmers in their farms to grow the crops. In this video, we are going to read about increasing crop production. This is our topic, how to increase crop production. So here we are going to read about some methods that farmers use to increase their crop production. Okay, so let's start. In addition to systematic agricultural practices, there are several other methods to use increase crop production. So we will see one by one. So the first method is crop rotation. Now what is crop rotation? Students, we know that some plants like wheat and rice and some other plants consume large amounts of nitrogen from the soil, and once they are harvested, the soil is depleted of nitrogen and may not be suitable for the plants which require more nitrogen. इसका मतलब है कि जो प्लांट्स ज़्यादा नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल है, तो जब इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है तो ये जो सॉइल है वो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और ऐसी सॉइल जो है ऐसे क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है जिनमें ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है. तो फार्मर्स क्या करते हैं? द फार्मर्स देन ग्रो अ क्रॉप ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स में कुछ नोडुल्स होती है, यानी गांठें होती हैं, जैसे कि बीन्स है, पी बीन्स है, सोया बीन्स, देन ग्राउंड नट्स, है ना. तो ऐसे जो क्रॉप्स है ये हम तब लेते हैं जब कोई ऐसा क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो जाता है जो ज़्यादा नाइट्रोजन कंज्यूम करता है. ओके, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनको जब हम अल्टरनेटिवली इनके साथ लेते हैं, ऐसे प्लांट्स के साथ जो नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो है दे कैन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स. ओके, हियर यू कैन सी ग्राउंड नट. पहले हमने पिक्चर देखी थी ये सोयाबीन की, एंड देन पीट्स. ओके, तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं देयर रूट्स हैव दिस टाइप ऑफ नोडुल्स. उनके रूट्स में ऐसे नोडुल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं. ओके, इनके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर रहता है. सो दीज राइजोबियम बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस नाइट्रेट्स. हाउ दे प्रोड्यूस? दे यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and then they convert it into nitrates and release them in the soil, and in this way the soil becomes rich in nitrogen and ready for the next crop of wheat or rice. Okay, so this rhizobium that is present in the root nodules of these leguminous plants, it increases the content of nitrogen in the soil. Here is a very good example of successful rotation. Here you can see this is maize. When maize is cultivated and then it is harvested, after harvesting it generates residue in the rotation. Means we know that some parts of plants they are just kept in the farm so that they can increase the humus in the soil. So this maize helps in generate the residues in the farm. Okay, the next is after maize cotton is cultivated. मेज़ के बाद जो है कॉटन कल्टीवेट किया जाता है उसमें फार्म में, सेम फार्म में, जिससे कैश इनकम जो है वो मिलती है, बिकॉज इट इज़ अ कैश क्रॉप. एंड आफ्टर कॉटन कल्टीवेशन और कॉटन हार्वेस्टिंग उसी फार्म में फिर काउपी, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको सोयाबीन, ग्राउंड नट्स और बीन्स, इस तरह के जो लेगुमिनस प्लांट है उसमें से ही एक है चौला, जिसको हम बोलते हैं काउपी. वो भी जो है लेगुमिनस प्लांट है, और ये प्लांट जो है क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो इट एड्स soil fertility to the farm. Okay, so in this way we can say that it is an example where we can rotate the crops. Okay, so what is crop rotation? It is the practice of growing different crops in succession on the same field so that the productive capacity of the soil can be preserved. तो इससे हम क्या करते हैं, soil की जो productive capacity है उसको increase करते हैं. Now what are the benefits of crop rotation? Crop rotation के benefits ये हैं कि first जो रेसिड्यूज प्रेशर होता है पेस्ट और डिसीजेस का वो कम होता है, क्योंकि हर तरह के जो क्रॉप्स हैं उनके जो डिसीजेज होते हैं या फिर जो पेस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी क्रॉप और मे बी अ ग्रुप ऑफ क्रॉप्स. ओके, तो इससे क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन की वजह से ये चेन उनकी टूट जाती है. तो
जो रेसिड्यू प्रेशर होता, इट रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द पेस्ट एंड डिसीजेस. देन सेकेंड वन इज द प्रिवेंट्स एग्जॉस्टिंग सॉइल. सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, वाटर है, देन फॉस्फोरस है, तो क्रॉप रोटेशन से ये जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर वो इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि हम क्रॉप्स चेंज करते रहते हैं. ओके. देन थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन कैन हेल्प इन द वीड कंट्रोल. वीड्स का भी सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया पेस्ट वगैरह का. तो कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ जो क्रॉप्स है, उनके साथ ग्रो होने वाले जो वीड्स हैं, उसका भी कंट्रोल हम कर सकते हैं आफ्टर क्रॉप रोटेशन. ओके. So in this way, these are the some benefits of crop rotation. The next is mixed cropping. Next method is mixed cropping. So what is mixed cropping? When two or more crops are grown in the same field at the same time, it is known as mixed cropping. Here you can see this is cotton plant and this is another, that is we can say groundnut. It is groundnut plant. So two plants are grown or cultivated in the same field at the same time. Okay. So this is one example, cotton and groundnut, they are cultivated at the same time in the same field. तो इसी तरह से दूसरे जो एग्जाम्पल्स है, जैसे कि वीट के साथ चिकपी हम ग्रो करते हैं, और वीट के साथ जो मस्टर्ड है उसको ग्रो कर सकते हैं. तो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग. यू कैन सी हियर ऑल्सो यू कैन सी. तो सेम फील्ड में हम दो तरह के अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं. This is known as mixed cropping. The crops are chosen so that the best products of one crop fulfill the requirements of other crop. तो जो ऐसे क्रॉप्स इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स चूज़ किए जाते हैं कि एक प्लांट का या फिर एक क्रॉप का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. The next method is field fallow. This is the natural method for improvement of the field in which no crop, here there is no crop is cultivated for one or more season. एक या उससे ज़्यादा सीजन्स के लिए क्रॉप जो है वो कल्टिवेट नहीं किए जाते हैं. एंड व्हाट हैपन्स, क्रॉप्स अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो क्या होता है कि जो ग्रासेस और हर्ब्स होते हैं, ग्रासेस एंड हर्ब्स दैट ग्रो ऑन द फील्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द एनिमल्स आर अलाउड टू ग्रेज. और ऐसे जो फील्ड है जो कि हमने विदाउट कल्टिवेटिंग रखे हैं, उन पे फिर एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ा जाता है. तो जब ये एनिमल्स यहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा यानी कि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन एनिमल्स के, दे रिमेन्स इन द क्रॉप एंड द लेफ्ट ओवर ग्रासेस एंड वीड्स फॉर्म द ह्यूमस इन ड्यू कोर्स एंड रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड मेकिंग इट फिट फॉर द कल्टिवेशन. तो ये जो एनिमल्स है इनका एक्सक्रीटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स और वहाँ पे जो ग्रासेस और हर्ब्स होते हैं, वीड्स होते हैं, वो सारे जो हैं वो उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम करते हैं. ओके. सो इन दिस वे दिस सॉइल इज देन फिट फॉर अनदर कल्टिवेशन. सो दिस प्रैक्टिस इज नॉट यूज्ड एनी मोर बिकॉज मेनी अदर एंड बेटर फास्टर मेथड्स आर अवेलेबल नाउ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल. और उसी में से एक है नंबर 4, हाई यील्डिंग वैरायटीज. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज HYV, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटीज. Now to increase the crop production we need to have crop plants with desirable characteristics. Desirable characteristics का मतलब होता है कि हमें ऐसी सीड्स चाहिए या ऐसे crop plants चाहिए जो अच्छे से ग्रो हो, जिनको कोई डिजीज़ नहीं हो, डिजीज़ फ्री हो, और अच्छे से वो जो है हमें जो भी हमारे उनमें से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वो हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन दें. तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इन प्लांट्स में होती है. द क्रॉप प्लांट शुड बी रेजिस्टेंट टू द डिसीजेज एंड ड्रॉट एंड शुड बी एबल टू गिव हायर यील्ड. दिस इज अचीव्ड बाय द साइंटिस्ट, दे आर नोन एज द प्लांट ब्रीडर्स. दीज साइंटिस्ट, दोज हु डू experiments to produce high yielding varieties of seeds, they are known as plant breeders. Okay, so these plant breeders, they keep on researching and by the process of breeding, plant breeding or hybridization, they produce high yielding varieties of seeds. तो इस तरह से जो plants मिलते हैं हमें या फिर जो seeds मिलती हैं, उन seeds को जब हम grow करते हैं तो we get an increased crop production, हमें ज़्यादा उससे जो है वो production मिलता है. तो what is hybridization? Hybridization is the process of cross breeding of
2 प्लांट्स, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, 2 प्लांट्स का क्रॉस ब्रीडिंग होता है, एंड दिस 2 प्लांट्स आर हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू गिव हाई यील्ड ऑफ सुपेरियर क्वालिटी। तो ऐसे 2 प्लांट्स जिनकी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हमें चाहिए, ओके और ऐसे प्लांट्स को जब हम क्रॉस ब्रीड करते हैं तो उनसे मिलने वाले जो क्रॉप्स होते हैं दे गिव सुपेरियर क्वालिटी एंड हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो इस मेथड में कुछ स्टेप्स होती हैं, लेट अस सी व्हाट आर दिस मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। So first 2 plants with desirable characteristics are selected. Here you can see the P plant it is. तो ये parent plants है male and female. Okay. Then these 2 plants are with desirable characteristics. Okay. Desirable characteristics मतलब वो disease free होते हैं या फिर उनमें जो है weeds को ख़त्म करने की उनमें capacity होती है या फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे से उनके ऊपर जो है वो फ्रूट्स है या फिर जो भी प्रोडक्शन हमें लेना होता है, सीड्स है, वो अच्छी क्वालिटी के आते हैं। तो ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 प्लांट हमें लेने हैं। 1 प्लांट विच गिव्स हायर यील्ड सपोज, बट ये प्लांट हायर यील्ड मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन तो देगा बट इट इज़ ससेप्टेबल टू डिसीजेस, लेकिन ये डिसीजेस से फ्री नहीं हो सकता, इट इज़ ससेप्टेबल टू डिसीजेस, एंड द अदर प्लांट शोज रेजिस्टेंस टू द डिसीज। और ये प्लांट जो है भले ही ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं दे प्रोडक्शन में बट ये जो है डिसीज रेजिस्टेंट है, ओके तो ऐसे 2 प्लांट जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है, ऐसे प्लांट्स को क्रॉस किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। नाउ इन केस ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंथर्स जो होते हैं वहाँ के, है ना, एंथर्स जो कि मेल फ्लावर के होते हैं, दिस एंथर्स ऑफ वन वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंथर्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं फ्लावर में से। देन व्हाट दे डू, द पोलेंस फ्रॉम अदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जैसे कि इसकी जो पोलेंस है जो दूसरी वैरायटी है प्लांट की, इसके पोलेंस जो है वो दूसरे प्लांट पर डेस्टिन किए जाते हैं, है ना, ट्रांसफ़र किए जाते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर, ओके। So pollen from the other variety of plants are transferred to the stigma of the emasculated flowers. तो emasculated जो flower होता है जिसको मैंने आपको बताया कि उसमें से जो anthers है वो निकाल लिए जाते हैं, तो उस पर dusting किया जाता है in pollen grains। Now the seeds obtained after fertilization are hybridized. Okay, these seeds are hybridized seeds and they are obtained by the process of hybridization. So when these seeds are sown and again this process is repeated for several generations, और यही सीड्स जो है हर बार जब हम सो करेंगे फील्ड में, फिर उनसे जो क्रॉप निकलेगा, जो भी हार्वेस्टिंग होगा, फिर उन्हीं सीड्स को हम सो करेंगे। तो ऐसे हम रिपीटेडली कुछ जनरेशन्स तक कर सकते हैं और इस तरह से हमें जो है हमारे डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स के साथ जो प्लांट्स हमने ग्रो किए थे उनसे हमें सीड्स मिलती रहेंगी। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं जो हमें इन ऐसे प्लांट से मिलते हैं, दे आर नोन एज स्टॉक। So these seeds are known as stalk. So there are some high yielding varieties of wheat and rice and maize in India. Wheat की जो कुछ varieties है hybrid seeds की, वो है कल्याण, सोनालिका, प्रताप HD, सोनारा 64, SD 2135। ये wheat की कुछ varieties है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। Then rice जो है उसकी बासमती 307, IR2H, IR48, जया, पद्मा, ये कुछ वैरायटीज़ राइस की है। देन मेज़ यानी मक्का जो है इसकी वैरायटीज़ है गंगा सेफ 2, गंगा 5, डेक्कन 101 एंड गंगा 9। दीज आर सम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज़। नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल सीड्स एंड HYV सीड्स। HYV मीन्स ऐसी सीड्स जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की है ना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन से जो हमें मिलती है। और ट्रेडिशनल सीड्स वो होती है जो जनरली हम जो पुराना जो क्रॉप होता है उससे जो सीड्स निकलती है उसी से हम वापस नया जो है प्रोडक्शन यानी कि उसको ही वापस सो करते हैं। Now there is difference between the traditional seeds and HYV seeds. HYV seeds means seeds obtained after hybridization. Okay, so how they are different? So first is traditional seeds produce low yield of crops. इससे हमें लो जो है इसका क्रॉप्स का प्रोडक्शन मिलता है। बट जो HYV सीड्स होते हैं दे आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड विच प्रोड्यूस मेनी क्रॉप्स विथ बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का जो है क्रॉप्स हमें मिलता है। ट्रेडिशनल सीड्स टेक मोर टाइम टू ग्रो इनटू क्रॉप्स बट HYV सीड्स टेक लेस टाइम टू ग्रो इनटू क्रॉप्स। ट्रेडिशनल सीड्स रिक्वायर
less amount of water for irrigation, while HYV seeds need more amount of water for irrigation. इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है. Traditional seeds are not harmful to the soil. HYV seeds are harmful to the soil and damage the fertility of the soil. Then traditional seeds are economic or less expensive. ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं. But HYV seeds are expensive as compared to the traditional seeds. Traditional seeds do not require pesticides or insecticides, whereas HYV seeds require intensive amount of pesticides and insecticides. So these are some differences between traditional seeds and HYV seeds. Now our next topic is green revolution. What is green revolution? Let us see. Green revolution is the significant increase in agricultural productivity resulting from the introduction of high yield varieties of grains, use of pesticides and improved management techniques. अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें एक इंक्रीज लाना, उसको बढ़ाना. कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ ग्रेन्स, हाइब्रिडाइज जो सीड्स है उनको यूज़ करके. दूसरा है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके, और जो इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स या फिर जो मशीन्स हैं एडवांस मशीन्स उनको यूज़ करके जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इट इज़ नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके, सो दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द picture you are watching on your screen now, he is Dr. Norman E. Borlaug, and he was able to bring a tremendous increase in wheat production in Mexico by the method of hybridization in 1960s. So this scientist Dr. Norman E. Borlaug is also known as the father of green revolution. So here you can see the high yielding variety of wheat. It is known as Mexican variety. ये Mexican variety है. And this variety was brought in our country also, and then there was a turning point in Indian agriculture. So these high yielding varieties have made our country sufficient in food grains and bringing the green revolution. Green revolution in India. Following Dr. Norman E. Borlaug, some Indian agriculturists also imported high yielding varieties from Mexico and crossbred them with Indian varieties of seeds, and this resulted in tremendous increase in wheat production in India, and this is also known as green revolution. Later on hybridization was carried out for other crops like rice and maize. दूसरे जो seeds थे यानी कि crops थे जैसे कि चावल और मक्का, इनमें भी फिर hybridization शुरू हो गया. Now you can see a picture here. He is Mr. M.S. Swaminathan, born on 7 August 1925 in Kumbakonam in Tamil Nadu, India. He is Indian geneticist and international administrator renowned for his leading role in India's Green Revolution, a program under which high yield varieties of wheat and rice seedlings were planted in the fields of poor farmers. तो poor जो farmers थे उनके फार्म्स में अच्छी क्वालिटी की जो राइस और वीट की सीडलिंग्स थी उनको प्लांट किया गया, और इससे जो है एक बहुत अच्छा इंक्रीज जो है उनको अपने क्रॉप प्रोडक्शन में मिला था. सो दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन. सो हाउ डज इट वाज डन. तो जब हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, वो कैसे होता है. सो फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे जो हल होते हैं यानी कि जिसको हम प्लोइंग कहते हैं ना, प्लोज है, वो अच्छी टेक्निक के होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, मशीनरीज होती हैं. देन हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो जो मशीन्स होते हैं, दे आर आल्सो मॉडर्न टेक्निक से बने होते हैं. तो इससे क्या होता है कि लेबर और एनर्जी और टाइम ये हमें कम लगते हैं, है ना. कम लोग लगेंगे और कम एनर्जी लगेंगी और कम टाइम में काम खत्म हो जाता है. HYVs वर एडेप्टेड टू पर्टिकुलर ग्रोइंग कंडीशंस. HYV यानी कि जो हाइब्रिडाइज जो सीड्स होती हैं उनको एडेप्ट किया गया. देन यूज़ ऑफ इरिगेशन और वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब इरिगेशन की जो अच्छी मेथड्स थी, मॉडर्न मेथड्स थी, उनको अपनाया गया. देन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए. विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी HYVs वर कैपेबल ऑफ मैच्योरिंग फास्टर. ये हमने देखा था कि ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी ग्रो होते हैं HYV सीड्स. तो
ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि लिए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बीच में. So green revolution made it possible to grow more crops roughly the same amount of land with a similar amount of effort. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि उन्हीं फील्ड्स में जिसमें हम पहले क्रॉप लेते थे, उन्हीं फील्ड्स में हमें ज़्यादा अर्निंग होने लगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो क्रॉप से ग्रो होने लगे, और हमने सिमिलर अमाउंट ऑफ एफर्ट किया, उतनी ही मेहनत में हमने क्रॉप यील्ड को बढ़ाया बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. द क्रॉप यील्ड इज़ इंक्रीज 3 times देन अर्लियर. पहले जहाँ पर क्रॉप्स लेते थे उसी फील्ड में 3 गुना ज़्यादा जो है क्रॉप यील्डिंग होने लगा. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है जिसकी वजह से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था. नाउ दीज आर सम हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स. आप देख सकते हो वेजिटेबल्स है कुछ, बिटर गार्ड, कैप्सिकम, चिली, टोमेटो, ओकरा एंड कुकुम्बर. ये कुछ हाइब्रिड सीड्स हैं. ऐसे ही wheat, tomato, peas, maize, wheat, here also wheat. So these are some brands of hybridized seeds. So here we have finished this topic. In our next video we are going to read about the animal husbandry. So be with me and thank you for watching this video. Students, if you like this video then please like, comment and share it with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Student, please be safe, stay at home. Whenever you go out, please wear mask, wash your hands regularly and take care of yourself. Bye bye.